Good morning, children. So let us start our next topic, and today we will discuss about what non-ohmic conductors. Non-ohmic means we can divide all the conductor into two categories. One is conductor and ohmic conductor, and second one is non-ohmic conductor. What do you mean by ohmic conductor? The conductor which obeys Ohm's law and whose VI graph is always in a straight line inclined on x-axis, or whatever you have taken here, I you have taken here, it is V. Okay, and it must pass through origin. So such conductors are known as what? Ohmic conductor. So non-ohmic conductors are those conductors which do not obey Ohm's law, means whose graph is, three conditions are there. Either their graph is not passing through origin, और they are having the non-linear graph. शुरू में ऐसा हुआ और उसके बाद again it is get turned in this direction. Here you have taken what? V, and here you have taken अगर I. तो when we pass current for long time, तो क्या हो जाता है बेटा? हीट प्रोड्यूस हो जाती है, एंड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द रेजिस्टेंस इज resistance increases, and as a result it will not obey Ohm's law. That is what the main precaution, that the do not pass current through the conductor for long time. तो वो फिर जो ohmic था small range में, it will become what? non-ohmic. That's VI graph, although it is passing through origin, but after some time it will become what? non-linear. This is what. So such conductor whose VI graph is non-linear, they are non-ohmic conductor. So first of all, second thing is that the conductors of value of I depends upon what? the sign of V. They are also non-ohmic conductors, although it is non-linear. ये है आपका PN junction diode का PI ग्राफ है. तो they are not straight line, and also what you have observed that कि the value of V depends upon what the sign of the value of I depends upon what the sign of V, whether you have forward bias or you have reverse bias. So this is what PN junction diode. So they are also non-ohmic conductor. The third thing is what? कि the relation between, here you have seen that in ohmic conductor for different value of V, every time we have what? the different value of I, means they have the unique value. But there are certain elements, substances, through which when we pass the current, they do not have the unique value. Okay, here if we take what? I, and here if we take what? V. So what you have observed, that the same value of I is coming for two different values of V. So they do not have the unique value. So such conductors whose VI graph are like this, whose has the non-linear VI graph, whose value of I depends upon the sign of V, and they do not have the unique value of I for respective V, such conductor, and if their VI graph is not starting from origin, तो such conductors are known as what? non-ohmic conductors. और जिसमें ये सारी conditions नहीं होती, they are known as what? ohmic conductors. ठीक बेटा? So knowing about all these things, now if you have seen minutely your syllabus, so what you have seen that कि only about the resistance the concept is there, temperature dependence of resistance is given. Then the thing which is omitted from this chapter is color coding of resistance and grouping of resistance. Although grouping of resistance आपको आती है, 10th क्लास में पढ़ा था बेटा आप लोगों ने. ओके, तो वो अब आपके सिलेबस से हटा दिया है इस बार के, ओनली फॉर दिस ईयर. तो अब अपना अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे. एंड नाउ द न्यू टॉपिक इज EMF of cell, terminal voltage of cell, potential difference and internal resistance of cell. This is what the new topics. Once again I am repeating, ये सब एक साथ ही पढ़ने पड़ेंगे. They all are interrelated. EMF of cell, terminal voltage of cell, potential difference and internal resistance of cell. कुछ एक ऐसे टर्म्स हैं. What is that? तो फॉर दैट बेटा अब पहले मैं आपको एक मैकेनिकल कुछ एक चीज़ समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा.
ये आपका मैंने एक सिंपल सा एक बनाया है. ओके, व्हाट इज दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये आपका घर, एंड दीज आर व्हाट द 3 क्लासरूम्स ऑफ 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वॉट एवर इट इज़. ओके, आप अपने आप को एज्यूम करोगे, देन ओनली वी विल का आपको कि सर पढ़ाना क्या, आप क्या पढ़ा रहे हो. एक थोड़ी सी कहानी बता रहा हूँ. आप सुबह सुबह सो के उठते हो फ्रॉम योर ड्राइंग रूम, मम्मी आपको उठाती हैं, आप फ्रेश वगैरह होकर तैयार होते हो, मम्मी आपको ब्रेकफास्ट और लंच पूरा खिलाकर और आपको यहाँ से भेजती हैं. ओके, मीन्स आपके अंदर सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड करके मम्मी ने आपको भेजा, और भेजने के बाद देन सपोज़ आप 4 पराठे खा के आ गए और 3 पराठे खा के आ गए, राइट, या 4 पराठे खाए में. तो यहाँ पर जब आप आते हो, ये रास्ता स्कूल आने का, व्हेन यू विल सिट इन फिजिक्स क्लास, डेफिनेटली इस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें से कुछ एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी. देन उसके बाद व्हेन यू विल गो टू द नेक्स्ट पीरियड, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, एंड फिर जब आप 3rd पीरियड में आओगे तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. क्लियर. एंड देन उसके बाद आप यहीं पर तो नहीं बैठ जाते, आप वापस घर पहुंचते हो, एंड देन अगेन वेरी नेक्स्ट डे मम्मी, आप थके मध्य घर पहुंचते हो, एंड मम्मी अगेन आपको बूस्ट अप करके वेरी नेक्स्ट डे सेम प्रोसीजर चलता है. तो टोटल एनर्जी सप्लाइड टू यू, क्यू मीन्स आपने पूरी W1 अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करी अक्रॉस फर्स्ट हर्डल, देन प्रोबेबिलिटी एनर्जी कंज्यूम पर by student in 2nd period and energy consumed by per student in 3rd period. तो ये जो चीज़ है बेटा, ओके, इट इज़ नॉन अबाउट द टोटल EMF. अभी बात ख़त्म नहीं हुई है. इट इज़ EMF E से डिनोट करो या कर्सिव E से. इट इज़ अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट हर्डल, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2nd हर्डल, इट इज़ अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3rd हर्डल. ओके, तो EMF इसको कहते हैं the total work done by the battery in moving charge from one electrode to another electrode, and potential difference is the difference of potential between any 2 points in the circuit, or the work done per unit charge in moving it from one point to another point in the circuit, that is known as the potential energy. This is what the difference. और EMF को आप कैलकुलेट करते हो जब आप स्कूल में नहीं हो, तब आपको बूस्टअप करके यहाँ किया गया है. तो मीन्स जब आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, तो EMF इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड of the cell when it is in open circuit, when no current is drawn from it. That is known as what EMF of the cell. And potential difference is the work done per unit charge in moving it from one point to another point in the circuit when circuit is closed. That is known as what potential difference. ये EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क है. यूनिट दोनों की सेम है. द यूनिट ऑफ EMF इज़ आल्सो व्हाट, जूल पर कूलम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ आल्सो जूल पर कूलम, दैट इज़ व्हाट वोल्ट. बस फ़र्क इतना है कि EMF ओपन सर्किट में है और पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इन क्लोज सर्किट. ओके, ये तो हुआ बेटा थोड़ा सा EMF की बात. लेकिन नाउ द 2 टर्मिनल पॉइंट्स आर देयर. वन इज़ टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. अभी मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊंगा, लेकिन अभी कम टू दिस टॉपिक ओनली. तो जब मम्मी ने आपको 4 पराठे खिला दिए, मीन्स आपको एनर्जी दे दी W, और जब आप जाने लगते हो, तो जैसे जाने लगते हो तो मम्मी बार बार जैसे जाने लगते हो तो मम्मी कहती है, बेटा अपना पलंग तो ठीक कर जाओ, बेटा अभी समय है तो अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल जाओ, बेटा टाइम है तो गाड़ी बाहर रख दो, बेटा टाइम है थोड़ा सा कमरे की सफाई कर जाओ. दैट इज़ व्हाट मीन्स आप जब इस अपने कमरे से दरवाजे तक आते हो तो मम्मी भी आपसे कुछ काम करवा लेती, मीन्स आपके मोशन का अपोज करती हैं. तो एज ए रिज़ल्ट इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी घर के अंदर ही कंज्यूम हो जाती है जो काउंटेबल नहीं है. तो इसीलिए जब आप बाहर आते हो तो आपका जो एनर्जी वो W नहीं रह जाती बेटी, थोड़ा सा कम हो जाती है. और जिस एनर्जी से आप यहाँ से चल पड़ते हो, तो वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, उसे हम कहते हैं बेटा टर्मिनल पोटेंशियल.
Clear? That is known as terminal potential difference. It is defined as the potential difference between the two electrodes of the cell when cell is in closed circuit. Right? तो अब आप अपन सर्किट से समझते हैं व्हाट इज द थिंग कि ये सर्किट हो गया. पहले आपको ईएमएफ का मैं एक एनालॉग समझा देता हूँ. मैकेनिकल एनालॉग ईएमएफ मीन्स व्हाट. सपोज आई हैव दिस सर्किट. एक मैकेनिकल अरेंजमेंट समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल देयर इज एन सिलेंडर फिल्ड विद अ विस्कस फ्लूइड. ओके, यहाँ से बॉल्स जा रही हैं. बॉल्स इसमें से पास हुई और पास होकर वापस इसके विस्कस फोर्स से जो अपोजिशन ऑफर होता है उसका दिन की एनर्जी लॉस हुई और इतनी एनर्जी कि दे कैन रीच हियर. तो क्या ये बॉल यहाँ से यहाँ तक अपने आप आ जाएगी? No, an agent has to do some work in picking ball from here and keeping here. So this work done per unit ball is known as what the EMF of the cell. Remember this thing. और यहाँ पर जो work done हो रहा है per unit charge, that is known as what the potential difference. Okay? तो जब आप पूरे स्कूल से घूमकर घर आते हो तो मम्मी आपको बूस्ट अप करती है. तो the work done per unit U is known as what the EMF. योर EMF, द टोटल एनर्जी. ना अब उसके बाद क्या होता है बेटा कि जब आप यहाँ से चले हो तो इस सेल का EMF E है. रिमेंबर दिस. तो जब आप चलने लगते हो यहाँ से यहाँ चलने लगते हो तो मम्मी आपको कुछ काम देती है और मम्मी जो आपको काम दे रही मीन्स आपके फ्लो में एक अपोजिशन ऑफर कर रही है. तो आपकी एनर्जी E ना रहकर बेटा थोड़ी सी कम हो जाती है. हाउ मच? इफ करंट इज I is flowing through it तो I into R. When circuit is closed, so this V will be equals to E minus IR. And this V, which is the potential difference across the electrodes of the cell, is known as what? Terminal voltage. और आप ये एनर्जी लेकर चल रहे हो, इतनी एनर्जी अंदर कंज्यूम हो गई है. Where R is what? It is known as what? The internal resistance of the cell. Internal resistance of the cell. विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी. वो कई पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है. आपका एक प्रैक्टिकल भी है. अच्छा बेटा प्रैक्टिकल्स कम नहीं हुए, बस प्रैक्टिकल सब वही है, उसे चॉइस में कर दिया और करके कर दिया है. तो डोंट वरी, आप घबराना मत. हम लोग सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे व्हेनेवर द स्कूल विल रीओपन. एंड थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है. 8 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल, 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड ऑफ विद एक्टिविटीज़ एंड 7 मार्क्स वाइवास. ऐसा कर दिया. इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट हटा दिया है फॉर दिस ईयर. ओके, दिस इज व्हाट द इन द सिलेबस. नाउ हियर अब अपन काम पर आते हैं वापस से. तो शैल बी राइट द डेफिनेशन. तो EMF किससे कहते हैं बेटा? EMF ऑफ द सेल, इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell. Means cell is in open circuit. Current is drawn from the cell is called EMF. Right? What do you mean by internal resistance? इंटरनल रेजिस्टेंस इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल in the flow of current through it. That is internal resistance. It is denoted by small r. इसकी यूनिट वही ओम ही होगी. बैटरी के साथ लगा हुआ रेजिस्टेंस मीन्स इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस. ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होती है. एंड नेक्स्ट इज टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसे कहते हैं इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस
between the electrodes of the cell when circuit is closed. इट इज़ डिनोटेड बाय V और इसकी यूनिट भी क्या होगी बेटा, वोल्ट होगी. ओके, अब मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूं. व्हाट इज़ दैट थिंग? ये सपोज here we have three resistors R1, R2, R3. Here we have what? A cell and key. ये वोल्ट मीटर आपने यहाँ लगा रखा. अभी की क्लोज नहीं है, तो क्या वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन देगा? यस देगा, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल. बट सिंस इस सेल से भी कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, इट इज़ इन ओपन सर्किट, तो ये जो इस वक्त डिफ्लेक्शन दे रहा है, इट इज़ मेजरिंग एट प्रेजेंट व्हाट, EMF ऑफ द सेल. और द मोमेंट जैसे आप की को ऑन करोगे तो आप पाओगे कि सपोज़ ये एक सेल है और ये 1.5 डिफ्लेक्शन दे रहा है. द मोमेंट जैसे ही आप की को ऑन करोगे तो आप क्या पाओगे बेटा कि ये जो डिफ्लेक्शन है वोल्ट मीटर में, ये थोड़ा सा अपने आप कम हो जाता है बेटा. कनेक्टेड वही है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, बट इट विल स्लाइटली रिड्यूस. तो वो अब क्या मेजर कर रहा है? नाउ इट इज़ मेजरिंग व्हाट, द टर्मिनल वोल्टेज. क्यों? बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बैटरी में जो करंट के फ्लो का अपोज करता है. देखो उसका डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव. करंट का डायरेक्शन सर्किट में है पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड आउटसाइड द सर्किट, और इनसाइड इसमें डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा. ओके, दिस थिंग. नाउ तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है कितना होता है बेटा, E माइनस IR. मीन्स इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक चार्ज को आने में, IR से. तो दिस इज़ व्हाट द वेल नोन सर्किट इक्वेशन. ओके, तो ये सर्किट इक्वेशन आपके बहुत काम की चीज़ है. नाउ रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन I इज़ 0 तो देन टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू द EMF ऑफ द सेल, है ना. तो द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrode is equal to EMF of the cell when no current is drawn from the cell. क्लियर हुआ बेटा? तो अगर मैं एक सिंपल सर्किट ले लेता हूँ, इतने 3 रजिस्टर नहीं लेता हूँ, और यहाँ पर भी अगर आप कोई एक वोल्ट मीटर लगाओगे बेटा, तो अगर कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो व्हेन सर्किट इज क्लोज तो इन दोनों की रीडिंग सेम आएगी. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, एंड इफ सपोज देयर इज अ सिंपल सर्किट, अ बैटरी and there is an voltmeter connected across. तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे, R is the resistance, then the current I जो फ्लो हो रहा है बेटा, तो V equals to IR, तो we can say I is equals to what, V by R. ओके, और जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो. इट इज़ नथिंग बट इट विल बी इक्वल्स टू E माइनस V बाय I. आपका प्रैक्टिकल है, यू हैव टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और वी कैन से R इज इक्वल्स टू E माइनस V, और I की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, V बाई R. तो दस इंटरनल रेजिस्टेंस इज E माइनस V बाई V होल इंटू R. ओके, दिस इज द रिलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर कैलकुलेटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. जैसे जैसे सेल कंज्यूम होता जाता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है. इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. ठीक बेटा. एंड नाउ और कुछ एक आखिरी बातें बता दूँ आज के लिए कि फर्स्ट इज वंस अगेन कि सिंस V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ओके, देन ये जो EMF है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. मम्मी ने आपको कितने पराठे खिलाए, उसमें से कितने पराठे की एनर्जी आप किस पीरियड में कंज्यूम करो, उनको कोई लेना देना नहीं है. तो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, E इज़ independent of external resistance. उससे कोई लेना देना नहीं, कनेक्टेड अक्रॉस. तो अगर कभी भी ग्राफ आता है बिटवीन E वर्सेस R, तो ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट आएगा. ओके, सेकंड थिंग इज व्हाट कि सिंस V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ओके,
और v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई की जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा v बाई आर इंटू आर। इसको उठा के इधर ले आओ तो v इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई आर, सॉरी r बाई आर इज इक्वल्स टू ई। तो हैंस v इज इक्वल्स टू व्हाट, e अपॉन 1 प्लस r बाई आर, ये रिलेशन। तो ये क्या बता रहा है कि जब r को बढ़ाते हैं बेटा, एज r इंक्रीजेज v आल्सो इंक्रीजेज, या ऊपर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो r अगर बढ़ता है तो v आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। एंड अ ग्राफ बिटवीन v एंड r, अगर हम v और r के बीच में ग्राफ खींचते हैं टर्मिनल वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में, तो ये बढ़ता चला जाता है, इट विल बी लाइक दिस, ठीक। और ये एक पर्टिकुलर ये वैल्यू EMF जब r इन्फानाइट हो जाएगा, रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन r इज इक्वल्स टू इन्फानाइट, तो v कितने के बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू e के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, थर्ड थिंग इज, सिंस v इज इक्वल्स टू e माइनस आई आर, और आई कैन राइट माइनस आई आर प्लस ई, तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के बराबर हो रही है, किसके बराबर, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दैट इज़ अगर हम ग्राफ खींचते हैं बेटा किस किस के बीच में, बिटवीन i एंड v, i एंड v, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, स्लोप डाउनवर्ड, ये e हो जाएगा, ओके, एंड दिस वन विल बी व्हाट, e बाय r, दिस इज व्हाट द ग्राफ स्लोप्स डाउनवर्ड, क्लियर हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द EMF of the cell and all these things, and remember this thing, terminal voltage is always less than EMF of the cell, only in one condition, when the cell is being charged, at that time the terminal voltage is greater than EMF of the cell, okay। ये आपको कुछ एक बातें इसमें ध्यान रखना। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो मैं आपको आगे भी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट पीरियड में बता दूंगा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।